Hello, good afternoon to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, Devoted Classes. Dear brothers and sisters, once more, you are most welcome into Devoted Classes. And today I have come with another video on word power, that is word power part 3. Already I made two parts, so my series of the word power is going on. So come join the class and have the pen and the paper and keep on writing and standing. My dear brothers and sisters, the words I am taking here, they are very important words. They will help you so much in cracking any exam related to English literature and TGT of UP, DSSSB and KVS, NVS, entrance exam, any English related exam maybe, or entrance exam of BHU, of Delhi, of Allahabad, or your entrance school level entrance exam of 9th, 11th, 8th, every way the video is helpful for you. So be careful, don't go anywhere, just sit before me and watch. So third part is word power made simply word power part 3. 10 more words we have here to discuss. So let us see the words. I think I am audible and visible clearly. Okay. So come. First word is ego. Second word is egotist. Third word is egoist. Fourth word is extrovert. Fifth word is introvert. Sixth word is ambivert. Seventh word is alter ego. And eighth word is alternate. Ninth word is alternative. And 10th word is ascetic. Fine. These are the 10 words today we will discuss. Fine. So let us take the first word, ego. Very simple word. Ego, simply I. Okay? I. Simply ego means I. I means me. So ego. Ego. You have heard this term ego? Every time we hear ego, मेरा ईगो टकरा गया उससे, है ना? दुनिया भर के लोग कहते हैं हमें ईगो छोड़ना पड़ेगा. हम लोग यूज तो करते हैं, लेकिन ईगो है क्या मालूम किसी को नहीं. ओके? ईगो मीन्स मैं श्रेष्ठ हूं. आई एम द सुप्रीम, आई एम सुपीरियर. सिंपली द sense of feeling I-ness is ego. Very simple word, ego. Fine. Hindi term is I means मैं और simply अहम. अहम संस्कृत का वर्ड अहम. ओके? और मैं भी हो सकता है. ये एक तरह से रूट है, लैटिन रूट. इसकी मीनिंग मैं होती है, आई होती है. फाइन. अब इस रूट पर आपको कई वर्ड मिलेंगे. यहाँ पर मैंने 3 वर्ड लिए हैं. चौथा वर्ड यहाँ है आपका आल्टर ईगो. 4 वर्ड हमने इस ईगो टर्म पर लिया हुआ है, ईगो रूट पर. फाइन. तो ईगो क्या है मींस क्लियर हो गया. ईगोटिस्ट क्या भाई? देखिए टी लगा. ईगोटिस्ट मीनिंग ए पर्सन हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ. आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट, आई एम ऑल राउंडर. एवरी टाइम wherever he is, says only I am the great, I am the greatest. So one who shows himself, one who simply focuses himself anywhere he tries to speak about him, praises himself in front of others, shows that I am very talented. That is what? Egotist. Fine. See the T. T means talker. Means talker of myself, talker of himself. Egotist means a person who tries to talk about
हिमसेल्फ। अपने आप के बारे में जो बहुत कुछ बोलता हो, अपनी ही बखान अपने मुख से करता हो, दूसरे को बोस्ट करता हो, उसी को कहते हैं हम इगोटिस्ट, अहमवादी। हिंदी टर्म इज अहमवादी, अहमवादी। फाइन। अगला है इगोइस्ट। इगोइस्ट जो है वो ही ऑल्सो सिंपली लाइक इगोटिस्ट, लेकिन वो जो है ज्यादा बोलता नहीं है, केवल अंदर अंदर ही अहम रखता है। He does not talk about himself, but he also says that I first. Okay, I first. He says, I am the first. Meaning, what is good for me? Suppose you say, I am going to Varanasi. So, many say, person says, I am going to Varanasi. He says, what benefit will be for me going to Varanasi? मतलब अपना जो देखता हो, स्वार्थी कह सकते हैं। फाइन। जो अपना देखे, मेरे लिए क्या है वहां पे, बोले ना, मतलब अपना ही स्वार्थ जो देखे। ओके, आई एम द फर्स्ट। ओके, मीनिंग वन हु इज इंटरेस्टेड, वन हु इज इंटरेस्टेड ओनली in the things that are good for him, मतलब जो अपना ही सोचता हो, ठीक, अपनावादी कह सकते हैं। ये हो गया आपका इगोइस्ट। आगे है एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एंट्रोवर्ट। तीनों वर्ड बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, और ये वर्ड जब आप वर्ड पावर में डीसी जब पढ़ते हैं, बुक बहुत फेमस है वर्ड पावर की, उसी ये शुरू ही इसे ऐसे वर्ड से करता है। फाइन। तो तीन वर्ड जो है अगर फोकस किए गए, मैंने अच्छे समझाई है, क्या है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। काइंड्स ऑफ पीपल जब देखेंगे, संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं, तो मोस्ट ऑफ अस वी कैन कंक्लूड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड। Okay, the people living in this world can be categorized into three important groups. First is the extrovert, second is the introvert, third is the ambivert. See what is extrovert. See the word X. Okay, extro plus what? Extro plus word. It means extro plus word is the root. Word क्या है? लैटिन रूट है। word means होता है turn, और extro means out, outside. Meaning a person whose thoughts are turned outside. Meaning is who likes to mix with others. The person who likes to mix with others. He goes on picnic, he goes to friends, he goes to the cinema, he goes into the public, and he just likes to talk, enjoy the party, playing games. He does. Meaning he is very what do you say, he is very friendly. Okay, so extrovert is person whose thoughts are turned outside. It means who likes to mix with others easily. You can say likes to mix with others easily. जो आसानी से दूसरों से घुल मिल जाता हो, उसे कहेंगे हम एक्सट्रोवर्ट। हिंदी टर्म इसके लिए क्या है? For this हिंदी टर्म is बहिर्मुखी। बहिर्मुखी ये टर्म है। हिंदी के पीछे ज्यादा पड़ी, खाली ये समझ चलिए ज्यादा करेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी हिंदी नहीं लिखी जाती, हिंदी नहीं पूछी जाती। ये तो मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। फाइन। सो a person whose thoughts are turned outside, meaning who likes to mix with others easily, that is known as extrovert. Example you can take of simply the leaders, celebrities,
actors, advocates, okay, call center workers, and any people who like to mix with others, any people who like to mix with others easily, they are known as extrovert. है ये मीनिंग निकली आपकी एक्सट्रोवर्ट की। चलिए, इस तरह के लोग पाए जाते हैं, आपको हमने बताया कौन से लोग हो सकते हैं, जो पब्लिक स्पीकर होते हैं, ओके, और आपके नेता होते हैं, सेलिब्रिटीज जो आपके एक्टर वगैरह होते हैं, कॉल सेंटर में काम करने वाले जो टेली कॉलर्स होते हैं, मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ये सारे लोग ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं। हम देखते हैं इंट्रोवर्ट, इंट्रो प्लस वर्ड से मिलकर बना है। ये क्या होता है, यहाँ इनसाइड, इंट्रो मीन्स इनसाइड, वर्ड मीन्स टर्न, वर्ड मीन्स टर्न, सो इनसाइड टर्न, meaning who starts to turn inside, meaning does not like to mix with others, he is very reserved person, fine, he likes to read book in the corner, he likes to just meditate himself in a corner, he likes to just live in the bed, he does not like to go out, he does not like to go to the cinema, he does not like to go to the picnic, he does not like to play with others, so he likes to keep himself reserved, okay. Simply we can say person who likes to keep himself reserved, सेल्फ सेंटर्ड मैन कहा जा सकता है, जो ये जगह बैठा रहे, एकांतवास इसको पसंद हो, लोगों से घुलना मिलाना पसंद हो, है ना, ऐसे आदमी को क्या कहेंगे, इंट्रोवर्ट कहेंगे, फाइन। इसमें आने वाले जो बंदे होंगे वो कौन हो सकते हैं इंट्रोवर्ट में? इंट्रोवर्ट में आपके मिलेंगे सबसे पहले तो आपके यहाँ देखते हैं, आपके क्या कहते हैं, टीचर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, और कौन हो सकते हैं, फिलोसोफर, सेंट्स, ये सारे बंदे जो एकांतवास पसंद करते हैं, हर्मिट, ये सारे बंदे इस कैटेगरी के लोग जितने भी हैं ये सारे क्या होंगे, इंट्रोवर्ट कहलाएंगे, फाइन, क्लियर। तो संसार में आपको इतना के लोग मिल जाएंगे पहली कैटेगरी के जो एक्सट्रोवर्ट हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में इस इंट्रोवर्ट को हम कहते हैं अंतर्मुखी। क्या कहते हैं? अंतर्मुखी, जिसकी थॉट्स अंदर हो गई हो, वो बाहर नहीं भगवान खोजेगा, भगवान के कोने में खोजेगा, अपने अंदर ही खोजेगा, मथुरा नहीं जाएगा, वृंदावन नहीं जाएगा, काशी नहीं जाएगा, कैलाश नहीं जाएगा, कबीर का पक्ष लेके चलेगा, वो को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, है ना। तो इस तरह से वो अपने अंदर ही भगवान को खोजेगा, या कुछ अच्छा काम एक जगह बैठ करेगा। साइंटिस्ट लोग होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, टीचर्स होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, ये सब एकांतवास में बैठ करके कुछ अच्छे काम करते हैं। महात्मा बुद्ध क्या कहे जाएंगे? इंट्रोवर्ट कहे जाएंगे। महावीर स्वामी क्या कहे जाएंगे? इंट्रोवर्ट कहे जाएंगे। फाइन, सेंट जितने भी हुए सबके सब इंट्रोवर्ट कहे जाएंगे, फिलोसोफर इंट्रोवर्ट कहे जाएंगे, टीचर भी कम बोलते हैं, काम से बोलते हैं, ये भी इंट्रोवर्ट कहे जाएंगे। इसका मतलब नहीं खराब ही लोग हैं, ये लोग तो बहुत सफल है भाई। अच्छे डॉक्टर भी बहुत कम बोलते हैं लेकिन भीड़ लगी रहती है उनके पास। फाइन, इट मीन्स दोज हु कीप रिजर्व हिमसेल्फ एंड डू द बेस्ट, दे आर नोन एज इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। ठीक, ये हो गया दो कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी क्या है? थर्ड कैटेगरी इज समथिंग वेरी इजी। एंबी मीन्स बोथ, एंबी प्लस वर्ड, या वर्टो कैसे हैं तो वर्टो, सॉरी वर्टो से मिला है, वर्टो है, रूट क्या है? वर्टो। एंबी मीन्स बोथ, एंबी मीन्स बोथ टर्न, यानी ऐसा आदमी जो 50-50 हो। मीनिंग इज ए पर्सन हु इज neither speaking too much
nor keeping himself reserved too much. In between, one who follows the medium path, meaning neither so much likes to go to the picnic, go mix with other, likes to go mix with others, likes to play games, nor he likes to sit at one place so much, meaning ये दोनों के बीच में समय समय आने पर वो कर लेता है। क्या करता हो? कबीर वाली, फिर आए कबीरदास, क्या करता हो? अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मध्यम मार्ग जो अपनाए, जो बीच में रहे, ना अधिक बोले ना कम बोले, जरूरत पड़ने पर बोले। फाइन, वही होता है जो है क्या आपका एम्बिवर्ट। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? उभयमुखी। उभयमुखी, ओके। यू कैन से शॉर्ट, इसका मीनिंग हिंदी में इंग्लिश में लिख लेगी पर्सन, अ पर्सन who is between introvert and extrovert, meaning neither he speaks too much nor too less। ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अल्टर ईगो। अल्टर ईगो, फाइन। यहां देखिए बहुत अच्छा वर्ड है। ये वर्ड अल्टर से बना है और दूसरा ईगो से बना है। अल्टर ईगो से बना है। अल्टर क्या है? अल्टर मीन्स अदर और ईगो मीन्स आई। अल्टर ईगो मीन्स अदर आई, माने सेकेंड आई, सेकेंड सेल्फ। क्लियर? एनी पर्सन हु इज सो फेवरेट, ओके, इक्वल टू यू, जिगरी दोस्त कह सकते हैं। सो योर bosom friend, अल्टर ईगो मीन्स bosom friend, bosom friend, सेकेंड सेल्फ। सेकेंड मतलब कोई आदमी जो आप ही करना चाहता है, इंपॉर्टेंट लगता हो, जिसके साथ आपने सीक्रेट शेयर कर सकते हो, उस विश्वास करते हो, बिल्कुल आपका ही प्रतिरूप दूसरा आदमी जो होगा उसे कहेंगे हम क्या? bosom friend, या इसको कहेंगे अल्टर ईगो। हर आदमी के इंसान की लाइफ में का दो होते हैं, अल्टर ईगो। फाइन, ये था आपका अल्टर ईगो। उसके बाद अल्टरनेट, और अभी सुना होगा बहुत अल्टरनेट। स्किप वन टेक वन, स्किप वन टेक वन, इसके बाद एवरी द थर्ड डे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मीनिंग फर्स्ट लीव द सेकेंड देन थर्ड, ये कुछ होगा। फाइन, वही स्किप वन टेक वन। क्लियर? तो हम स्किप वन टेक वन कह सकते हैं। हिंदी का इसके लिए टर्म है हमारे पास, क्या कहते हैं इसको? अल्टर, अल्टरनेट एंगल होता है ना, किसमें ज्योमेट्री पढ़े होंगे ना, उसमें अल्टरनेट एंगल होता है, माने एक कुछ होगा एक दूसरा एंगल, उसे कहेंगे अल्टरनेट। सेकेंड अल्टरनेटिव, दूसरा वर्ड है अल्टरनेट, मीन्स स्किप वन टेक वन, टेक वन स्किप वन। क्लियर? उसको हम कहते हैं। इसके बाद आपका अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव सिंपली मीन्स चॉइस, चूज द वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, ओके। चॉइस, अल्टरनेटिव मीन्स चॉइस, ओके। Again we have the last word of today is we have ascetic, one who likes to do just penance, okay, one who does penance simply, जो तपस्या करता हो, तपस्वी कह सकते हैं इसको, हम सेज कह सकते हैं, सेज या सेंट कहा जा सकता है। फाइन, जो रिगरस प्रैक्टिस करता हो एकांत में, ओके, रिगरस, वन हु डज रिगरस पेनेंस इन द जस्ट आइसोलेशन इज नोन एज
एसिडिक, साधु सन्यासी महात्मा उसको कहेंगे हम एसिडिक। क्लियर? सो वी हैव these 10 words. Ego, man, simply egotist, one who talks about himself, always praising himself. Egoist, one who is proud of himself, one who boasts but not openly. Egoist, introvert, extrovert है, ambivert, ये 3 टर्म हैं। संसार के प्रकार के लोग होते हैं, वे लोग जो लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, गप्पे से मारना, पार्टी करना उनको पसंद है, उसे कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, उसको हिंदी में बहिर्मुखी कहते हैं। और दूसरी कैटेगरी लोग हैं जो शांत रहते हैं, एक जगह बैठ के तपस्या करेंगे, कोई और सामाजिक कार्य अच्छा बैठ के करेंगे, किसी से घुलना मिलना उनको पसंद नहीं है, एकांत बैठ के अच्छी कार्य करते हैं, वो कहलाते हैं इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ना बहुत कम बोलेंगे, बीच में रहेंगे, यानी कि कभी कभी बोल भी लेते हैं, कभी कभी शांत भी रहते हैं, यानी जो बीच में हैं, ना ज़्यादा बोलेंगे ना कम बोलेंगे, यानी दोनों, ना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है ना ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। और यही सब ज़्यादा आज हमारे समाज में देखे जाते हैं। ज़्यादा सफल लोग यही हैं, तीसरी कैटेगरी के लोग, उससे ज़्यादा देखे भी जाते हैं। डॉक्टर, सॉरी, कोई भी हो इस तरह का जो बीच में रहता है, काफ़ी लोग यही लाइफ पसंद करते हैं। मध्यम मार्ग का पाठ भगवान बुद्ध पढ़ा गए थे, मिडिल पाथ। ओके, तो मिडिल पाथ के लोग बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि आज की युग में ज़्यादा किसी से ज़्यादा घुले मिलेंगे तो ही आपका पेट काटता है, वही आपके मतलब पीठ में छुरा भोंकता है। किसी ने कहा ना, ऐ खुदा तो मुझे मेरे मित्रों से बचा, है ना, दुश्मन से मैं निपट लूँगा, तो मुझे मेरे मित्रों से बचा। क्योंकि जो है एक शेर याद आया मुझे तो अपनों ने लूटा, मुझे तो अपनों ने लूटा, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और किश्ती डूबी वहीं पर पानी जहाँ कम था। तो अपने लोग हमें धोखा देते हैं, इसलिए बीच में रहिए। न ज़्यादा घुलना मिलना अच्छी बात है, ना कम घुलना मिलना अच्छी बात है। ज़्यादा घुले मिलेंगे ये पता है मैंने, आपके दुश्मन हो जाएंगे आपके दोस्त। काम में रहेंगे लोग आपको कहेंगे स्वार्थी है, नहीं किसी मिलेंगे कहेंगे बहुत स्वार्थी है, सेल्फिश है, अपना ही मतलब रखता है, वे ठीक नहीं है। फिर बीच का रास्ता अपनाइए, ठीक है। तो आगे देखिए आप, अल्टर ईगो। अल्टर ईगो क्या है, मैंने बताया, अल्टर मीन्स सेकंड, ईगो मीन्स आई, आप ही की क्वालिटी का जो दूसरा बंदा है जिस पे आप विश्वास करते हैं, सेकंड सेल्फ, या आपका जो जिगरी दोस्त है, जो आपका फर्स्ट फ्रेंड है, उसी को कहते हैं हम अल्टर ईगो, सेकंड सेल्फ। एंड अल्टरनेट का मतलब मैंने बता दिया, स्किप वन टेक वन, टेक वन स्किप वन। हिंदी टर्म इसके लिए क्या कहें इसको, अल्टरनेट एंगल, एक को छोड़कर एक जो आता है उसे हम, एक टर्म है हिंदी में याद नहीं आ रहा है, वही एक को छोड़ के एक होता है अल्टरनेट। फाइन। इसके बाद है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मीन्स होता है चॉइस, सिंपल। क्या होता है, चॉइस, ठीक है, चॉइस। नहीं, क्वेश्चन आता है कि चूज ओनली वन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। ओके, ए बी सी डी, एक ही राइट है, उसी का आपको टिक करना है या चूज करना है, उसमें से निकालना है, उसको कहते हैं अल्टरनेटिव। हिंदी में किसको हम विकल्प कहते हैं, क्या कहते हैं, विकल्प। अल्टरनेटिव को हिंदी टर्म है विकल्प, ठीक। और एसिडिक बताया हमने, जो साधु महात्मा सन्यासी जो होते हैं, एसिडिक मीन्स सेज, सेंट, उन्हें कहते हैं हम एसिडिक, ठीक है। तो ये रहा आज का 10 वर्ड्स जो आपके बहुत काम आएगा। आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। और इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू एनी वे इन क्रैकिंग एनी एग्जाम,
I will be very felicitous, very glad to hear the news that you got success in any field due to these words. So note down these words and learn them by heart and make a list, note in your notebook and keep on revising. Okay, so that's enough for today. If you like, definitely you like, so just like, share and comment. And those who are watching this channel for the first time, please subscribe my channel so that you can get the notification of my videos that are upcoming. Fine. So thank you very much. Now until I make another video, you keep on just laughing, enjoying your life, practicing more and more. Now it's time to say bye bye. See you. Take care.